माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी हमारे बीच पधार चुके हैं। आपका अभिनंदन है सर। भारतवर्ष के माननीय उपराष्ट्रपति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री एम वेंकैया नायडू जी कुछ ही पलों में परोक्ष रूप से हमारे साथ जुड़ेंगे। भारतवर्ष के माननीय उपराष्ट्रपति और आज के समारोह के मुख्य अतिथि श्री एम वेंकैया नायडू जी का आगमन हो चुका है। माननीय महोदय, आपका अभिवादन है। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मैं महानिदेशक CSIR और सचिव DSIR डॉक्टर शेखर C मांडे जी से स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करूंगी। Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji, Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Shri Jairam Thakur ji, Director of Central Building Research Institute, Roorkee, Dr. Gopalakrishnan ji, all the friends and family of CSIR CBRI, and all others who have joined in this virtual meeting to celebrate glorious 75 years of CSIR CBRI. My felicitations and greetings to the CBRI family for this particular occasion. I would like to welcome especially Honorable Vice President of India, Shri Venkaiah Naidu ji, for this function, and thank you for your gracious presence, sir, on this particular occasion. I also welcome Honorable Chief Minister of Himachal Pradesh, Shri Jairam Thakur ji, for this function. Honorable Vice President ji, during the difficult period of COVID, many CSIR labs rose to the occasion and brought many innovative solutions to the society, including diagnostics, drugs, ventilators, and many other things. Even a laboratory like CSIR CBRI Roorkee were able to bring in very valuable contributions in terms of emergency hospitals, which can be constructed on site in literally about 5 to 7 days, and we are very proud of CBRI's contributions in this regard. I welcome you all on this occasion and look forward to the function. Thank you very much. धन्यवाद सर। Follow mic testing 1 2 3 इंजेस। सर अभी सर इसी पोडियम से बात करेंगे क्या? वहाँ पर भी माइक है क्या? यहाँ पर सेटिंग है उनका। लाइन पे ओपन ये स्टेज तैयार। कौन है? कौन आया? इसका शुभारंभ आज यहाँ से मैं कर रहा हूँ। My dear sisters and brothers, while we aim to achieve. Hello, what's your topic? बस बढ़िया आप शिमला में ऐसे था क्यों आप गए थे शिमला जी? हाँ जो कहाँ था जी ऐसे
बेड के लिए फैन कोविड आए ना आए ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ गई है सेट बन गया हमारा जैसे रेस्पिरेटरी पेशेंट हो जाए It is indeed my pleasure to connect with you virtually to inaugurate the Platinum Jubilee Foundation Day celebration of Central Building Research Institute, what we call in short CBRA. Started as a building research unit, 47. CBRA is one of the 37 national laboratories of the prestigious Council of Scientific and Industrial Research. I'm happy to note that CSIR and CBRA have been greatly contributed to nation building over the decades. I also convey my deep appreciation to the scientists of this institute for having taken responsibility of constructing 5 COVID hospitals in Himachal in record time. I'm also happy to have inaugurated today the makeshift hospital at Nalaghar in Solan district and also in Tanda in Kulu. Himachal Pradesh, these two institutes are very much required, and that too is being done during the Platinum Jubilee celebrations. And the Platinum Jubilee Pseudo-Dynamic Laboratory and the Center for Excellence in Cultural Heritage at CSIR CBRA. The idea of our home evokes a warm feeling in our hearts. Wherever we are and whatever we may become, at the end of the day, it's an amazing feeling to go back to the place we call our home. Over the course of human history, people might have progressed from simple mud-walled huts to sophisticated skyscrapers. The emotion remains the same. What has changed, of course, in the recent decades is the criticality of real estate to our economy. Real estate market size in India is expected to reach $1 trillion by 2030. It will contribute to nearly 13% of our country's GDP by 2025. Housing and construction propels many ancillary sectors and is one of the largest employers in the country, both in the organized sector and unorganized sectors. The sector's importance both to the common man and to the microeconomy is bound to grow in the coming years. With this kind of rapid growth, आज हिमाचल में 2 जगह नालागढ़ और मेडिकल कॉलेज टांडा में जो मेक शिफ्ट हॉस्पिटल जो कोविड-19 के लिए बनाया है उसका आज उद्घाटन माननीय उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने किया और हिमाचल के मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। नालागढ़ में 45 बेड्स होंगे टोटल, 35 ऑर्डिनरी और 10 आईसीयू बेड्स होंगे। आज जो 10 है उसको 18 तक हम बढ़ा सकते हैं, अभी 10 चलाएंगे, वैसे 18 तक उसकी कैपेसिटी है। तो बहुत बड़ा फ़ायदा है। कोरोना के बाद भी इसका उपयोग हमेशा होता रहेगा। एक इसमें एडिशनल कैपेसिटी हमारी होगी, बड़ा मॉडर्न है, हाई टेक का है। CBRI रुड़की ने पूरा डिज़ाइन एंड इसको जो इसकी कंस्ट्रक्शन की है। तो CBI रुड़की जो है वैसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, वैसे इसमें प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो पहले से 75 जिसकी आज प्लैटिनम जुबली भी है, 75 साल उसको एस्टेब्लिश हुए हो गए। तो उन्होंने कार्य किया है ये। इसके लिए मैं केंद्र सरकार और प्रदेश की जयराम ठाकुर जी को का धन्यवाद करता हूँ और नालागढ़ की जनता को बधाई देता हूँ। और इसके बाद हम बहुत जल्दी ही जो ट्रॉमा सेंटर है उसका कार्य भी शुरू करने जा रहे हैं। ट्रॉमा सेंटर भी लगभग 3 करोड़ की लागत से बहुत बढ़िया
ट्रॉमा सेंटर बनेगा, उसका जो ऑपरेशन थिएटर है उसका काम बहुत जल्दी शुरू कर देंगे। और बढ़िया है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ नालागढ़ टूर होगा तो हम कोशिश करेंगे इसको 100 बेडेड से 200 बेडेड हॉस्पिटल का भी हम इसका वो अनाउंसमेंट करवाएंगे। और साथ में डॉक्टर्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी अराउंड, मैं कहता हूँ अराउंड 10 की बजाय 20 करने की कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ OPD बहुत ज़्यादा है, ताकि लोगों को लाभ मिल सके। नालागढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई। देखो, नालागढ़ में आज 45 बेड का स्पेशल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल जो कोविड के जो सीरियस पेशेंट हैं उनके लिए बनाया गया है। और ये माननीय हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने आज का लोकार्पण कर दिया है। हालांकि कोविड की स्थिति आज बिल्कुल सामान्य है, लेकिन आने वाले समय में जो WHO भी कहा कि स्पाइक ना हो आने के लिए और लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी से ना जूझना पड़े, वो सभी प्रकार के जो मॉडर्न इक्विपमेंट जो कोविड जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनके लिए होने चाहिए वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो अब जो हम जूझ रहे थे पिछले 9 महीनों से कोविड के क्रिटिकल केसेस को हम रेफ़र कर रहे थे जगह जगह कहीं, तो अब उनसे हमें इस प्रकार की कोई असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन आज के समय में अभी भी हमारे 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स कोविड के हमेशा ही रहेंगे, जो पीछे भी होते रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड सैनिटाइज़र और मास्क। सर्वोपरि मास्क का जब तक ये कोविड एलिमिनेट नहीं हुआ, मास्क का उपयोग तब तक रहेगा। चाहे वैक्सीनेशन का कैंपेन चला हुआ है, 100% वैक्सीनेशन भी होगा तब भी मास्क की जो ये है अनिवार्यता बनी रहेगी। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी उसकी दवाई से भी बेहतर है, जो कि इन्फेक्शन से रोकता है। तो मेरा यही आप लोगों के माध्यम से एक संदेश आम पब्लिक को है। हालांकि सुविधाएं उपलब्ध है, सब कुछ व्यवस्थाएं आपके लिए खड़ी कर दी गई है। किसी भी प्रकार की कोताही, जो हमारे 3 कार्डिनल 3 प्रिंसिपल है, 3 सूत्र है, इसमें किसी भी इसमें कोई कोताही ना बरतें। बाज़ार निकलें, बाहर निकलें, हमेशा ही मास्क पहन के निकले, और इससे ही आपका ये पूरी सुरक्षा निहित है। तो आगे कैंपेन है, वैक्सीनेशन कैंपेन पूरा दौर पकड़ेगा, पूरा 100% वैक्सीनेशन होगी। उससे भी लोगों को बहुत ज़्यादा जो पूरा लगभग जो आपकी इम्यूनिटी है वो जनरेट होगी। तो ये आशा करता हूँ कि कोरोना जो काल से जो हमसे गुजरे हैं, आवश्यकता इसकी ना पड़े और सब स्वस्थ रहे और संपन्न रहे और अलर्ट रहे। ये मेरा संदेश आम जनता को है।